آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بوندائی بیچ پر بڑی دہشت گردی، تقریب میں شریک افراد، مسلح افراد کی فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے کہا حملہ آوروں کا نشانہ یہودی کمیونٹی تھی جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے کو آسٹریلیا پر حملہ قرار دیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان نے حملے کی مذمت کر دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے، ہم اس درد کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ، قطر، یورپی ملکوں سمیت دنیا بھر سے حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا، لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے۔ احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں۔ احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا۔ احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا۔ سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ سڈنی حملہ آور پر اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک فیکٹری سرگرم۔ آسٹریلوی میڈیا نے حملہ آور کی شناخت نوید اکرم کے نام سے بتائی۔ اسرائیلی، بھارتی، افغان میڈیا نے شیخ نوید نامی نوجوان کی تصویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے شیخ نوید نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ نوید کی سوشل میڈیا پر اپیل، کہا عوام اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہ آئے۔ 3 ملکوں کا میڈیا میری تصویر دکھا کر جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ شیخ نوید نے فیس بک پر سامنے آ کر جھوٹ کی تردید کر دی۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، بنو اور محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا محمد میں آپریشن کے دوران 7 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ بنو میں 6 خوارج مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ SHO خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں، دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا۔ FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد پولد افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نے کہا بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ رواں سال 78,000 انٹیلیجنس آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے، ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا، موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکے۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے، پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ PTI نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔
पीटीआई ने फैज हमीद से भरपूर फायदे उठाए। फैज हमीद से फैजयाब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सरअंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों से मुतालिक इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मंसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलिर कैंट से नुमाइश तक रेड लाइन मंसूबे का दौरा। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया रेड लाइन के फेज 1 की तामीराती मुद्दत इब्तदाई तौर पर 2 साल जबकि नजरसानी के बाद ये मुद्दत 4.5 साल मुकर्रर की गई। फेज 2 की मुद्दत 6 साल मुकर्रर है। काम का आगाज मई 2022 में हुआ था। वज़ीर आला सिंध का कहना था रेड लाइन सिंध हुकूमत का अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का भी दौरा किया। कहा मलीर नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद धुंध। कौमी शाहरा और मोटरवेज पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस डीएसपी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस हुकाम का कहना है 10 मरले का प्लॉट कत्ल की वजह बना। मुलजिम डीएसपी उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। उस्मान हैदर ने पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीद रखा था। मुलजिम ने प्लॉट वापस लेकर बेच दिया और रकम इस्तेमाल कर ली जिस पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की। मुलजिम ने छुरी के वार से बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश काहना नाले में फेंकी। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम शमरेज साथियों की फायरिंग से मारा गया। एबटाबाद पुलिस का दावा। डीपीओ ने बताया मरकजी मुलजिम शमरेज रूपोश था। पुलिस ने मोबाइल डेटा से ट्रेस किया। ठंडियानी रोड मीरा रहमत खान कुंडा के मकाम पर पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम शमरेज साथियों की गोलियों की जद में आ गया। मुलजिम के साथियों की तलाश जारी। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने मुलजिमान की मदद से कत्ल करवाया था। डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को अगवा किया गया। 5 रोज बाद ठंडियानी से उसकी लाश मिली थी। कराची से अगवा होने वाला शहरी लाड़काना से बाजियाब। 67 साल का अशरफ दोस्तों से मिलने सुपर हाईवे गया था कि नामालूम मुलजमान अगवा करके अंदरूने सिंध ले गए। रतो डेरो के करीब पुलिस नाका देखकर मुलजमान ने मुगवी को गाड़ी से फेंका और फरार हो गए। गाड़ी और मुलजमान का सुराख ट्रैकर की मदद से लगाया गया। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। 20 तारीख को पाकिस्तान में PSL का रोड शो होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में गुफ्तगू। कहा इस बार फैसलाबाद में भी PSL के मैचेस होंगे। इवेंट के बाद कराची का नेशनल स्टेडियम गिराएंगे और लाहौर से अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी की बड़ी वजह PSL की ट्रेनिंग है। कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा PSL रोड शो में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं सुपर लीग से प्रेशर में खेलना सीखा। साइम अयूब बोले PSL के जरिए बड़े प्लेयर्स को देखकर अपनी गलतियों पर काम किया। अब्रार अहमद ने बताया कप्तान पावर प्ले में बॉलिंग देकर प्रेशर देते हैं। घर में अब्बू शादी का प्रेशर देते थे। पहली बार मुझे कराची किंग्स ने सलाहियतें आजमाने का मौका दिया।
न्यू यॉर्क में पहली बार HBL PSL सुपर लीग का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना था, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, क्रिकेट की बात आते ही शायकीन का जुनून बढ़ जाता है। PSL पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त बन चुकी है। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा, PSL में मकामी टैलेंट को मौके दिए जा रहे हैं। PSL की कामयाबी में सबकी मेहनत शामिल है। रमीज राजा बोले, PSL नौजवान क्रिकेटर्स के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। नायब वजीर आजम इसाक डार की अबू धाबी में सरबनियाज फोरम की साइडलाइन पर मुलाकातें। UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला से मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। अमरीकी साबिक सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात की। हिलरी क्लिंटन का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसाक डार बरतानिया और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मिस्र और आज़रबाईजान के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफ़ाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुअव्वन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकित कहते हैं, बाइनेंस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारफीन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। IMF का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनजीर कफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश। IMF का कहना है, बैनुल अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सारिफीन की क़ुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मुराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपए की जाएगी। IMF ने कहा है, रियल एस्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वाले भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम मुअस्सर बनाने से माली निज़ाम बेहतर होगा। काम पीपल्स पार्टी करती है, फीता काटने जमाते इस्लामी वाले पहुंच जाते हैं। जिला वस्ती के टाउन जमाते इस्लामी के पास है, लेकिन काम सिफर है। हाफिज नईम UC चेयरमैन बनने के बाद लाहौर चले गए। नॉर्थ नाजिमाबाद में 10 करोड़ की लागत से गलियां पीपल्स पार्टी ने बनाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जमाते इस्लामी बताए रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेंगे। काम नहीं करना तो घर जाओ, पीपल्स पार्टी बताएगी काम कैसे होता है। जमाते इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, काबिज मेयर KMC के सालाना 55 अरब का हिसाब दें। वाटर कॉरपोरेशन के 47 अरब और सॉलिड वेस्ट के 43 अरब कहाँ खर्च किए। अरबों के बजट के बावजूद मेयर की कारकर्दगी सिफर है। हमारी UCs के बजाय पीपल्स पार्टी के टाउन और UCs का काम भी मीडिया पर दिखाएं। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। क्वेटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन क्वेटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। गवादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदो नवाह में डैम खुश्क। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। वसीम अकरम ने शोहरा आफाक तुर्क शेफ का अंदाज अपना लिया। PSL रोड शो न्यूयॉर्क के दौरान नुसरत गोगचे के मखसूस स्टाइल में खाने पर नमक का छिड़काव किया। तुर्क शेफ अपने इसी मखसूस अंदाज की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं।
جھل مکسی ڈیزرٹ جیپ ریلی اختتام پذیر پریپیئرڈ کیٹیگری میں جعفر خان مکسی فاتح قرار، نادر خان مکسی نے دوسری، صاحبزادہ سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بی کیٹیگری میں نعمان سرانجام نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ نامور ریسر فیصل شادی خیل اور جین دھوت کی گاڑیاں ٹریک پر خراب ہو گئی۔ اور کراچی سی ویو ریفینس فیز 8 پر ہاف میراتھن کا انعقاد، 2000 سے زائد افراد کی شرکت۔ میراتھن میں ایتھلیٹس، شوبز سٹارز اور غیر ملکی بھی شریک ہوئے۔